ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی خیریت مل صاحب؟ ہاں الحمدللہ۔ جی مل صاحب، آپ نے یہ ٹرو اسلامک ایپ نے لانچ کیا ہے نا اعلیٰ حضرت کے فاؤنڈیشن سے؟ ہاں جی جی جی، اس میں ایک حدیث مبارکہ ہے کہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رات کو اتنا قیام کیوں کرتے ہیں کہ آپ کے ایڑی مبارک پھٹ جاتی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے آگے پچھلے بظاہر خلاف اولیاء کاموں کو معاف فرما دیا ہے۔ تو جس کا ترجمہ ہے یہ علامہ غلام سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے اسلامک ایپ میں۔ تو اس سے مطلب اعلیٰ حضرت نے قرآن مجید میں اس آیت کی ترجمہ اسے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے صدقے تمہارے امت مطلب تمہارے اگلوں کے پچھلوں کے گناہ معاف کیے، بلکہ انہوں نے ایسا ترجمہ کیے، تفصیلی ترجمہ ہے وہ اعلیٰ حضرت کا۔ تو جی جی، تو یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 20 میں جو ہے ترجمہ، پھر وہ کیا ہے؟ یہ ابھی تفسیر قرآن پاک کی لکھی جائے گی۔ نہیں، یہ میں حدیث کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ حدیث کے تعلق سے کئی علماء فرماتے ہیں اختلاف اولا سے مراد یہ ہے کہ بظاہر ہماری نظر میں وہ جو کام ہے جی جی وہ خلاف اولا ہے، جی جی لیکن وہ جو کام ہے وہ اللہ کے نبی کے لیے وہ خلاف اولا نہیں ہے، جی بلکہ نبی جو کریں گے وہی شریعت بنتی ہے۔ جی جی سمجھ رہے ہو؟ جی جی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ان پر غصہ بھی ہوئے نا۔ نہیں، دوسرے حدیث بھی موجود ہے، وہاں پہ نبی کا عرض یہ ہے کہ کیا میں شکر گزار بندوں میں سے نہ بنوں؟ کئی حدیثیں ہیں، 10-20 حدیثیں ہیں اس کے تعلق سے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ میں بھی سفارش نہیں کر سکتا، جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جن کے اگلے پچھلے تمام خطائیں کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6565۔ کیا ہے؟ حدیث نمبر 6565۔ 6565 جی، اس میں آپ دیکھ لیجیے گا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان سے امت سے، یعنی جب قیامت کے دن تمام جو انسان ہوں گے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر موسیٰ، اس کے بعد عیسیٰ، تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے جاؤ محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ جو اللہ کے بندے ہیں جن کے پچھلے تمام خطائیں کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر۔ جی، تو اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟ وہی وہاں پر جو وہ عربی کا جو لفظ ہے جی جی اس کا ترجمہ خطا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ خطا نبی سے نہیں ہوتی ہے، تو وہاں پہ وہ حدیث کی تعویل ہوگی اور اس کا ترجمہ یہ لیا جائے گا کہ اگلے پچھلے اپنی امت کے یا پھر وہ خلاف اولا کام یہ سب۔ نہیں، جب آدم سے لوگ التجا کریں گے اے آدم علیہ السلام آپ تمام انسانیت کے باپ ہے، تو آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میں جنت میں وہ پھل کھا لیا تھا شجر کے پاس، اللہ تعالیٰ اگر میری وہ خطا پکڑ لے تو نہ میں ادھر کا رہوں گا نہ میں ادھر کا رہوں گا۔ تمام نبی اپنی خطا ظاہر کریں گے، اور جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بنا خطا ظاہر کرے ہوئے جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بلکہ ایسا بولتے ہیں، اور تمام نبی اپنا خطا ذکر کریں گے، تو پھر امت کہاں سے ہے اس میں؟ ہیلو جی، تمام جو نبی بولیں گے نا اس سے یہی مراد جو لیا گیا سارے مفسرین نے کہ وہ اگر اس طریقے کے ورڈ آتے ہیں تو اس کو خلاف اولا میں شمار کیا جائے گا، نہ کہ گناہ میں۔ کس میں خلاف اولا کام جو ہماری نظر میں اور کسی چیز کے خلاف کام ہے، جی جی، لیکن وہ اللہ کے نبی کے لیے اور نبیوں کے لیے وہ خلاف اولا نہیں ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کا جو معاملہ ہے تو وہ خطا اجتہادی تھی، وہ اس کو خطا میں شمار نہیں کر سکتے۔ جی جی، مطلب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا نا کہ اے آدم اس شجر کے پاس مت جا۔ جی، پھر وہ حکم آدم علیہ السلام پر فرض نہیں تھا کیا؟ اگر حضرت آدم علیہ السلام وہ نہیں کھاتے، وہ گندم نہیں کھاتے۔ نہیں، میں وہ سوال نہیں کر رہا، میں آپ سے فرض میں وہی سوال کر رہا ہوں آپ سے جی جی کہ حضرت آدم علیہ السلام وہ گندم نہیں کھاتے تو ہم تم کیسے پیدا ہوتے؟
हम तुम पैदा होने की बात नहीं है, यहाँ पे वही फर्ज बात नहीं है, है ये बात हो रही है। कि आदम अलैहिस्सलाम अगर नहीं खाते तो हम तुम पैदा कैसे होते? पैदा होते नहीं होते बात नहीं है मेरे भाई। ऐसा नहीं होता है। अच्छा, फिर कैसे होता है? ऐसे होता है इसका कि मतलब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जानबूझकर खिलाया फल, अल्लाह ने खिलाया, आदम अलैहिस्सलाम की इज्तिहादी खता थी, वो इज्तिहादी खता थी वो। इज्तिहादी खता थी। तो क्या आदम अलैहिस्सलाम पर फर्ज नहीं था वो फल नहीं खाना? अल्लाह का हुक्म, क्या नहीं था? अल्लाह ताला ने हुक्म दिया ना, आदम उस शजर के करीब ही मत जा वरना तो जालिमों में शुमार हो जाएगा। ये आयत है ना सूरह बकरा की। जी, फिर अल्लाह ताला ने जब हुक्म दे दिया तो फिर वो हुक्म फर्ज होगा कि नहीं? तो अभी दूसरा अकीदा जो है हमारा, नहीं फर्ज है नहीं, ये नहीं, दूसरा अकीदा जो हमारा है हाँ। कि दुनिया की कोई भी चीज है वो अल्लाह के हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। जी। तो फिर ये अकीदा कहाँ जाएगा? या फिर ये अकीदा मतलब गलत है? कौन से? कि अल्लाह के हुक्म के बगैर हाँ। एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो फिर ये तमाम इंसान गुनाह कर रहे हैं, अल्लाह के हुक्म से कर रहे हैं ना, फिर अल्लाह जहन्नुम में क्यों डालेगा? वो फितरत थे, वो अल्लाह ताला आलिम गैब है। में भी फितरत है ना? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जो अल्लाह ताला के जो खलीफा है, आदम ने क्यों कहा, क्यों खाया? अल्लाह ताला के जो नबी हैं और जो अल्लाह ताला के जो खलीफा हैं, वो लोगों को गुनाहों से बचाने आए थे, ना कि खुद गुनाह करने। और जो ये अकीदा रखे कि अल्लाह के नबी गुनाह करते थे, गुनाहगार थे, तो वो काफिर है। कौन गुनाहगार है? जो ये अकीदा रखे कि अल्लाह के जो नबी हैं वो गुनाह करते हैं या उन्होंने गुनाह किया, जो ऐसा अकीदा रखता है तो वो काफिर है। साबित कीजिए, कौन से कुरान में कौन से हदीस में लिखा हुआ है? कौन से कुरान कौन से हदीस में लिखा हुआ है? हाँ, साबित कीजिए, दलील क्या है आपके पास जो ये कहे कि अंबिया है खता होती है कि आपने कहा कि वो काफिर है? खता कौन सी? ये खता होती है, इज्तिहादी खता तो आपने इस्तेमाल किया है ना, कुरान में बताइए इज्तिहादी खता। औरत होती है और आपकी अम्मी और आपकी बीवी बराबर हो गई क्या? फिर सब औरत ही होते हैं। तो फिर दोनों औरत के पास जा सकते हो क्या? क्या दोनों औरत के पास? आपकी अम्मी और आपकी बीवी दोनों औरत है, तो फिर दोनों के साथ वो सब कुछ कर सकते हो जो बीवी के साथ करते? नहीं करते। तो क्यों नहीं करते? फिर औरत तो औरत होती है। शरीयत ने हुक्म नहीं दिया ना। क्या जो आप कह रहे हैं? तो शरीयत में ये अल्फाज इस्तेमाल हुए खता इज्तिहादी अहादीस मुबारका में। क्या बताइए, मुझे दलील दीजिए इज्तिहादी। अभी वो मेरे जहन में नहीं है। आप है तो देंगे ना भाई? नहीं, अच्छा, मतलब अगर निकल गई तो फिर आप शर्त लगा लेते हैं, अगर खता इज्तिहादी वाली हदीस अगर मिलती है तो आप मुझे 1 लाख रुपए दे देंगे, और नहीं मिलती है तो फिर मैं आपको 1 लाख रुपए दे दूंगा। भाई 1 लाख नहीं है, बात सच्चाई की हो रही है। हाँ, तो सच्चाई की बात होती है, तो सच्चाई के लिए कुछ अब मैं एक्सेप्ट कर लूंगा वो बात को। नहीं, ऐसे कैसे एक्सेप्ट कर लोगे? अच्छा, तो मतलब के लिए काम करते हैं या लोगों को दावत करने के लिए काम करते हैं? आप पैसों के लिए काम करते हैं, लोगों को दावत पहुंचाने के लिए? दीन के काम करने के लिए पैसों की जरूरत है। नहीं, तो जो पैसा आपसे मिलेगा वो हम दीन के कामों में लगाएंगे। इससे क्या दो फायदे हो जाएंगे ना, दीन का फायदा भी हो जाएगा और आपकी इस्लाह भी हो जाएगी। उसके पास भी कर्जा लेके लगाएंगे क्या? हाँ बिल्कुल, आप अगर गरीब है तो ले लीजिए, कर्जा ले लीजिए, दीन का कुछ अच्छा करिए ना। नहीं मेरे भाई, अगर मैं गरीब हूँ तो मेरे पास से लाख रुपए ले लेंगे आप शर्त? अरे बिल्कुल, कहीं से इकट्ठा कर लीजिए। जो उलमा बयान करते हैं क्या ऐसे बयान करते हैं कि लाख रुपए देंगे तो मैं तुम्हारे को सच्चाई बयान नहीं, जिस अंदाज में आप पूछ रहे हो दलील दो, तो फिर मैं भी उसी अंदाज में बात करूंगा ना। फिर आपने ये भी कहा होंगी तो देंगे ना, होंगी तो देंगे ना, आपने कहा ना। तो ये जो अंदाज आपका बता रहा है कि आप निहायत ही क्या बोलेंगे, जाहिल किस्म के आदमी हो। अच्छा चलो, मैं जाहिल हूँ तो जाहिलों के साथ इस तरीके से फिर बात कर सकते हैं ना? तो नहीं कर सकते, फिर बताओ जल्दी। फिर कहाँ कर सकते नहीं, बताओ ना जरा। क्या बोले? जाहिल क्या बोले? जाहिलों से ऐसी बात कर सकते कि नहीं?
अरे मेरे भाई क्या जाहिल की बात, बताओ ना जरा, कौन सी जाहिल जाहिलों है से बात भाई? कर सकते हैं? उमर ने बताओ जरा। कपड़ा पकड़ के खींचा, फिर उन्होंने क्या है, नमाज किसने? पढ़ रहे तो खींचे तो। उमर रजी अल्लाह ताला ने जिसको नमाज पढ़े बाद से जो नबी के पास गला पकड़ ले खींच ले गए, फिर उन्होंने क्या है, गला पकड़ कर खींच को लेके हाँ साहबा कराम को लेके आए, क्या करे? साहबा कराम को, क्या साहबा कराम को? उमर रजी अल्लाह ताला ने जब ठहरे हुए थे कहाँ ठहरे साहबा हुए थे? दीगर मस्जिद में, अच्छा, जब सही बुखारी की रिवायत है, मैं आपको नंबर भी बोलूंगा। हाँ। तो जब साहबा कराम नमाज पढ़ रहे थे तो उमर रजी अल्लाह ताला ने क्या कि वो सहाबी जो है अलग अंदाज में खिरात कर रहे थे, तो उमर रजी अल्लाह ताला ठहरे और परेशान हो गए कि ऐसे तो नबी ने नहीं सिखाया था कि ऐसा कहीं को पढ़ रहे। जब तक वो सहाबी की नमाज मुकम्मल हुई, जब तक उन्होंने इंतजार किया उमर रजी अल्लाह ताला ने। हाँ, उसके बाद जैसे ही नमाज खत्म हुई सहाबी की, तो उनसे पूछे क्या अल्लाह के रसूल, जैसे ही नमाज खत्म हो गई उस सहाबी की, हाँ, तो उमर ने पूछा कि ये तो इस तरह खिरात, उमर रजी अल्लाह ताला, वो तुम्हारा बाप है क्या? क्या वो जो उमर कह रहे हो? का आदमी है, नहीं, क्योंकि जो गला पकड़ लेके नबी नहीं, वो नहीं पूछ रहा हूँ, आदमी की बात कर रहा हूँ। जो तुम्हारा बाप है तो तुम्हारे नहीं, वो ना, गला पकड़ वो नहीं, फिर क्यों नहीं आता? वो नहीं, वो जो तुम्हारा बाप है, क्यों नहीं आता है उसको भी तुम्हारे बाप को भी नाम से पुकारते हो क्या? हम हमारे बाप तो नहीं करे ना, गला पकड़ लेके नहीं, वो तुम्हारे बाप, अरे तुम्हारे बाप को भी नाम से पुकारते हो क्या? ना, वो नहीं, ऐसा नहीं होना। तुम्हारे साहब, हेलो, वो तुम्हारे बाप को नाम से पुकारते हो? हेलो, हेलो, वो तुम्हारे बाप को भी अब नाम से पुकारते हो, तुम्हारी माँ को भी नाम से पुकारते हो क्या? हमारे बाप ने ऐसी जाहिलाना हरकत नहीं की ना उमर की तरह। ना, जाहिलाना हरकत की तुमको पैदा करके, इससे जाहिलाना हरकत क्या हो सकती है? उमर ने क्या किया फिर? अगर तुम अपने औलाद की, तुम्हारे बाप की सही औलाद हो तुम फरमाओ, फिर उमर ने क्या किया? जाहिलाना खिताब नहीं भी हो क्या? अरे वो मैं कह रहा हूँ तुम्हारे बाप ने इतनी जाहिलाना हरकत की तो तुमको पैदा कर उमर दिया। सही नहीं है तो तुम्हारा बाप क्या सही होगा? बताओ। तुम्हारा उमर सही नहीं है, तुम्हारा बाप क्या? हमारा मतलब तुम नहीं मानते हो हजरत उमर को? क्या आप जो बात करें नहीं, वो हमारा नहीं, एक ना, मैंने जब सवाल ना, तो तुम नहीं मानते हो हजरत उमर को? जो साहबी जिना उसको साहबी मानते हो तुम? अच्छा, साहब वो हजरत उमर ने जिना करे? दूसरा साहबी ने किया है क्या? उमर ने घसीट लेके नबी के पास लेके? नहीं, वो नहीं कह रहा हूँ, हजरत उमर ने जिना किया है? हजरत उमर नहीं, दूसरा साहबियां भी है। अरे बाबा, तुम्हारी उम्र कह रहे हो तो तुम हजरत उमर को नहीं मानते हो? अरे मेरे भाई मैंने कहा, अबे कुत्ते के बच्चे, हजरत उमर को तू नहीं मानता है? तेरा उमर कुत्ता जो जाहिल, तेरी माँ, तेरा बाप